Mukhtar completed his bachelor's in geoinformatics engineering from IGIES NUST in 2020. After graduation, how was your first job experience? इसी था कि अभी हमारे फाइनल पेपर नहीं हुए थे तो मुझे मेरे साथ कंपनी ने राब्ता किया कि हाँ हम आप Final year students are worried about their future and getting job immediately after the graduation. मतलब अभी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं अभी भी उनके पास काफ़ी टाइम है, मतलब 5-6 महीने हैं, तो वो उसमें अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। Do you think it's good to join a company, or is it good to join go for higher studies or further research in the field? जो ज़्यादा चीज़ डिपेंड करती है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। Assalamu alaikum everyone. I am your host Muhammad Hamad Khan and I welcome you all to the Chadar's new YouTube series Ask the Graduate. Today we have our very own and special guest Umair Mukhtar here with us. Assalamu alaikum Umair bhai. वालेकुम सलाम हमाद, कैसे हैं आप? First of Alhamdulillah I'm fine Umair bhai. First of all, I would like to give you a brief introduction about our worthy guest for here with us today. Umair Mukhtar completed his bachelor's in geoinformatics engineering from IGIES NUST in 2020. And now currently he is working at a reputable private company. During his university life, he developed strong interest in GIS development and he loved to experiment with different web GIS technologies. During his university life, in his early days of his university life, he started participating in various competitions that helped him make connections with reputable companies as well as gave him insights of technologies being used in various sectors. So this was all a brief introduction about our worthy guest today and we will start doing some questions with him. So मेहर भाई, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि would you like to please tell us and our whole audience about your journey which started after getting into NUST, then pursuing degree at IGIS and mostly after graduation, how was your first job experience? Please. जी, तो IGIS में पढ़कर एक तो सबसे पहले ये मेरी खुशकिस्मती मैं अपनी समझता हूँ कि मुझे IGIS में आने का मौका मिला। और जब हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे थे तो अच्छे दोस्त मिले और उन अच्छे दोस्तों की बदौलत और अच्छे टीचर्स की गाइडेंस की वजह से मेरा थोड़ा-सा इंटरेस्ट इन चीज़ों में टेक्नोलॉजीज़ में इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया। तो चूँकि अब इस्लामाबाद जैसे शहर में बंदा रह रहा है तो वहाँ पे हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी ज़बरदस्त थी। तो मैं कोशिश करता था कि ना जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं उनके अंदर हम पार्ट करते रहें ताकि उधर जाके लोगों से जब मिलता है तो कनेक्शंस बनाने में हमें बहुत मदद मिलती है इससे। और दूसरी बात ये होती है कि थोड़ी-सी बंदे को समझ भी लग जाती है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो किस तरफ जा रही है और हमें आगे अगर हमने जाना है तो क्या चीज़ है जिसके ऊपर हमें फ़ोकस करना चाहिए। और जॉब का ये है कि जॉब का मेरा सीन बहुत ज़्यादा ईज़ी था कि अभी हमारे फाइनल पेपर नहीं हुए थे तो मुझे मेरे साथ कंपनी ने राब्ता किया कि हाँ, हम आपको हायर करना चाहते हैं। तो फिर फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने उन्हें कहा कि फ़िलहाल मैं प्रोजेक्ट बेस्ड कर लेता हूँ। आपको भी पता चल जाएगा कि इज़ इट गुड इनफ टू हायर दिस पर्सन और नॉट। और मेरा ज़ाहिर एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और क्योंकि मैंने पढ़ाई को भी टाइम देना था। तो जब हमारे पेपर ख़त्म हो गए तो फिर मैंने उन्हें जॉइन कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे तकरीबन कोई 5 से 6 कंपनियाँ मेरे साथ राब्ता कर चुकी हैं हायर करने के लिए। माशाल्लाह, इट्स वेरी गुड थिंग टू नो। अच्छा, मूविंग ऑन उमर भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मेनी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट देयर फ्यूचर एंड गेटिंग जॉब इमीडिएटली आफ्टर द ग्रेजुएशन. So what you would advise those students that from where they should start when it's come to finding a job? Please share your experience. As you have already mentioned that you were able to get many job offers during your final year, but it might not be the case for most of the students who are doing their degrees. तो जॉब अगर हमारे ज़हन में जॉब को हमने मद्देनज़र रखना है ना, तो उसके लिए एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि हम ना साथ-साथ अपना एक पोर्टफोलियो मतलब अभी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, अभी भी उनके पास काफ़ी टाइम है, मतलब 5-6 महीने हैं, तो वो उसमें अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। जब आप किसी कंपनी के पास जाते हैं ना, तो आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि अच्छा मुझे ये चीज़ आती है, बल्कि अगर एक बंदा है जो आप बता रहे हैं कि मुझे चीज़ आती है और एक बंदा दिखा रहा है, तो डेफ़िनेटली हू वुड यू हायर? जिसके पास एक चीज़ दिखाने के लिए। तो पोर्टफोलियो बनाएँ, जो चाहे आपका एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी है, उसको सेव रखें, उसको कहीं जाने ना दें, ताकि आपके पास दिखाने के लिए चीज़ हो, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आसानी होती है जॉब मिलने में।
उमर भाई, मेरा आपसे अगला सवाल ये कि इन योर ओपिनियन डू यू थिंक इट्स गुड टू जॉइन अ कंपनी और इज इट गुड टू जॉइन गो फॉर हायर स्टडीज और फर्दर रिसर्च इन द फील्ड, एंड कैन यू टेल व्हाट आर द प्रोस? जो ज़्यादा चीज़ डिपेंड करती है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। मतलब आप इन फ्यूचर किस साइड पे जाना चाहते हैं। अगर आप रिसर्च वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो फिर आपको रिसर्च चूज़ करनी चाहिए। लेकिन अगर आप जिस तरह अब मेरा गोल अल्टीमेट गोल मेरा ये है कि मैंने एक अपनी अब कंपनी बनानी है। तो उसके लिए मेरे लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि मैं एक कंपनी जॉइन करूँ, उसके अंदर देखूँ कि चीज़ें किस तरह चलती हैं कंपनी में, लोगों को कैसे डील करना है, प्रोजेक्ट्स को कैसे डील करना है, उन सारी चीज़ों के। तो इन माय केस ये ज़रूरी था कि मैं जॉब करूँ ताकि मुझे लोगों को डील करना है और सारे मामलात जो कंपनियों में होते हैं, मुझे थोड़ी-सी उसकी ज़्यादा अच्छी इनसाइट मिले। अगर आपका एक गोल है कि आप मतलब रिसर्च एंथुसियास्ट हैं, तो आप यानी कुछ नया इन्वेंशंस और उस साइड पे जाना चाहते हैं या कोई नई रिसर्च करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए रिसर्च करना बेहतर है। दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, बस ये है कि आपकी फ्यूचर गोल पे डिपेंड करता है इन दोनों के दरमियान कि क्या आप चूज़ करना चाहेंगे। मेरा अगला सवाल आपसे ये कि व्हाट पर्टिकुलर क्वालिटीज यू थिंक ग्रेजुएट ऑफ जियोइंफॉर्मेटिक्स शुड हैव इन order to get education for master studies in any international university? सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर मास्टर्स के लिए करना, मास्टर्स के लिए एक तो आपकी ना वो जो स्किल है, अपनी एनालिसिस की स्किल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप लोगों को जो कि एक तो हमें लैब्स करवाई जाती हैं वो आप सही तवज्जो से करें। लेकिन हम नोट करेंगे कि अब आज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आर्क मैप है हमारे पास, तो आर्क मैप में एक इतनी वसी उसकी फंक्शनैलिटी है ना कि उसको 4 साल की लैब सिर्फ लैब्स के ऊपर हम रहें तो उसको कंप्लीट करना नहीं बेहतर, मतलब अब मुश्किल है कि हम उस लैब्स में कंप्लीट कर लें। तो उसके लिए ये तरीका होता है कि आप ना उसके अलावा खुद एक्सप्लोर करते रहें चीज़ों को कि लेट्स से अब लैब्स है, अब लैब्स में तो बेसिक चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं या कम्प्लेक्स भी पढ़ा दी जाती है लेकिन कंप्लीट नहीं हो सकता, तो कोई चीज़ रह जाती है। जैसे कि अगर लेट्स से आपकी हाइड्रोलॉजी रह जाती है, तो आप उन चीज़ों को वैसे सर्च करें इंटरनेट पे, और टीचर्स हमारे बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, तो आप उनसे वैसे एक्स्ट्रा टाइम में जाके भी उन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं और वो कर सकते हैं। दूसरी ये है कि अगर आप जैसे आप आर्क मैप में चीज़ें काम कर रहे होते हैं, तो उनके बैक एंड पे भी तो कोई कोडिंग चल रही होती है, कोई प्रोग्रामिंग चल रही होती है। तो आप ये जो आपका फालतू टाइम होता है, मतलब आप के पास है टाइम कि आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हो उस टाइम में, तो अब ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें कि अच्छा ये जो काम आर्क जीआईएस में मैंने किया है, ये अगर मैं पाइथन में करना चाहूँ या मैं जावा में करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो एक तो ये है कि आपका साथ-साथ पोर्टफोलियो बनता जाएगा, दूसरा आपको ज़्यादा अच्छी तरह इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जो आप कर रहे हैं, उसके बैक एंड पे क्या चीज़ हो रही है। और ऑब्वियसली फिर आपको रिसर्च में भी और यूनिवर्सिटी एडमिशन में भी आसानी होगी, और जॉब मिलना तो ऑब्वियसली आसान हो जाएगा क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी आ रहा है। Very well said. अच्छा उमर भाई, मूविंग ऑन, वी हैव द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट, और वो ये है कि डज जीपीए मैटर, इफ यस देन व्हाट इज कंसीडर्ड अ गुड। ओके, अच्छा जीपीए की जहाँ तक बात है, अभी मुझे कोई 5-6 महीने हो गए ग्रेजुएट हुए, मुझसे अभी तक जीपीए किसी ने पूछा नहीं है। हाँ, अलबत्ता फिर इसके अंदर वही बात आ जाती है कि आपका फोकस क्या है। अगर आप चाहते हैं कि किसी अच्छी रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है बाहर, तो फिर आपको ना जीपीए अच्छा रखना पड़ेगा। तो 3 से ऊपर तो कम से कम होना चाहिए आपका जीपीए। लेकिन ये है कि एज़ सच जॉब के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ज़्यादा असर करता है, अनलेस यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब, तो जॉब के ऊपर इतना ख़ास असर नहीं करता जीपीए, लेकिन 3 से ऊपर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। जॉब के ऊपर ज़्यादा चीज़ ये असर करती है कि आपके अंदर स्किल्स कितनी है। जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि आप आर्क मैप में एक काम कर सकते हो, वही काम आप ओपन सोर्स लाइब्रेरीज़ को पाइथन या जावा में यूज़ करके भी कर सकते हो। तो एक बंदा है जिससे आर्क मैप भी आता है और वो वही काम आर्क पाई या इसके पाइथन या जावा वगैरह में यूज़ करके वो दोबारा उसमें वो भी कर सकता है। तो ज़ाहिर है उसको एक एज मिल जाती है ना, तो उसका जीपीए अगर थोड़ा कम भी हो तो गुज़ारा चल सकता है। इन द सेम केस फॉर रिसर्च पर्पसेस या एडमिशन पर्पसेस, अगर तो आप
अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के दौरान कुछ किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। जिस तरह आप काफ़ी टीचर्स होते हैं लास्ट में वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, हाइड्रोलॉजी पे कर रहे होते हैं, क्लाइमेट चेंज पे कर रहे होते हैं, इस तरह की बहुत सारी फील्ड हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। तो आप उनके साथ अटैच हो जाएं तो फिर भी आपका ये है कि आपका किसी तरीके से पेपर में नाम आ जाए आपका, या खुद आप आसान है पेपर लिखना, कोई इतना मुश्किल नहीं है, रिसर्च वगैरह आप लोग कर ही रहे होते हैं। अगर पेपर वगैरह में नाम आ जाए तो फिर उधर भी आपको जो जीपीए अगर थोड़ा बहुत कम है तो उसकी कमी जो है वो आपका जो पेपर में नाम आया हुआ है वो पूरी कर देगा, और ये बहुत आसान है टीचर्स के साथ अटैच हो जाए तो। ठीक हो गया उमर भाई। उमर भाई मेरा आपसे अगला सवाल ये कि एंड दिस क्वेश्चन इज क्वाइट स्पेसिफिक टू पाकिस्तानी जॉब। Question is that does our university name have any impact on how likely you are going to get a job, and what is this actually the case for the students? Do they get any sort of privilege or any leverage once they graduate and get any jobs or seek for any jobs in job market? देखिए यूनिवर्सिटी का नाम तो ज़ाहिर है चलता है, मतलब पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी का नाम है इम्पोर्टेंट, लेकिन यूनिवर्सिटी के नाम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिर मैं वही बात करूँगा, एक ही तरफ आ जाऊँगा कि स्किल्स जो आप 4 साल जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वो फोकस करेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल बात है कि अगर आप किसी से ज़्यादा चाहते हैं या किसी से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको उससे ज़्यादा मेहनत और उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का नाम चलता है, लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी का नाम आपको एक इंटरव्यू में ले जाके बिठा सकती है, मगर वहाँ पे जब इंटरव्यू में बात होनी है तो उस वक्त आपने अपना मटेरियल प्रूव करना है, आपका पोर्टफोलियो मैटर करेगा, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सही हो गया उमर भाई। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि व्हाट इज द जनरल वर्क एनवायरनमेंट फॉर अ फ्रेश ग्रेजुएट? इससे मेरी मुराद ये है कि अगर एक नया ग्रेजुएट है वो जॉब मार्केट में जाता है और उसको जॉब मिल जाती है तो उसको किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और व्हाट आर द थिंग्स व्हिच ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ, वो क्या क्या कर रहा होगा जॉब मार्केट के अंदर? स्टार्ट में जब आपका बिल्कुल स्टार्ट होता है ज़ाहिर है आपको चीज़ें आती हैं लेकिन उतना आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो स्टार्ट में आपसे आसान काम करवाए जाते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिनका कोई कंपनी के वर्क फ्लो पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता वो आपसे करवाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपना मटेरियल प्रूव करते हैं, कंपनी को समझ लगती है कि इस बंदे में वो स्किल्स हैं कि हम इसे टफ काम भी दे सकते हैं, तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और आप उसको ज़्यादा टफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। आई हैव बीन लकी इनफ टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट दैट विल बी यूज्ड बाय सम आईवी लीग यूनिवर्सिटीज, so I have been lucky enough to work on big projects at very starting point in my career. Okay, बहुत अच्छी बात। Okay, Umair bhai, my next question is that, and I am sure a lot of us have asked ourselves during our degree, और मेरा क्वेश्चन ये कि हम मोस्टली इस तरह के कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं जिनका हमें प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन कोई नज़र नहीं आ रहा। फॉर इंस्टेंस आप लीनियर अलजेब्रा को देख लीजिए, जो मैथमेटिक्स के कोर्सेज होते हैं जो हमें बस फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, इक्वेशंस एंड ऑल दैट स्टफ, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, हम सारा उसमें गेम कर रहे होते हैं। हमें उनका प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल नहीं समझ आ रहा होता। मोस्टली बच्चे ये कह रहे होते हैं कि सर हम तो यूनिवर्सिटी लाइफ आए थे, हमने सुना था इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, लेकिन उनको कुछ इस तरह का आउटपुट नहीं नजर आ रहा होता। तो आपका क्या कहना है कि ये कोर्सेज हमारी जिंदगी में कहीं इम्प्लाई होते भी हैं या नहीं? अच्छा, मैं ये क्योंकि हम जब स्टूडेंट होते तो हम सबका यही ख्याल होता है कि यार ये मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, हमें कहीं इसका इस्तेमाल नहीं नज़र आ रहा। मेरा अपना यही ख्याल था, मैं ये सोचता था कि यार ये मैथमेटिक्स का क्या काम है भला। लेकिन जब आगे चले हैं तो मुझे मशीन लर्निंग के एक प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ा था, और उसमें अगर आपके लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स नहीं अच्छे तो आप उसमें उतना अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि एक एल्गोरिदम है प्रोग्रामिंग का, करस्तूबाज एल्गोरिदम। तो अब उसके पीछे सारी ये लीनियर अलजेब्रा निकला हुआ है कि अगर वो लीनियर अलजेब्रा उसके पीछे ना यूज़ किया होता करस्तूबा एल्गोरिदम में, तो ये जो आपकी मोबाइल मल्टीप्लिकेशन आपको यूँ सेकंड्स में करके देते हैं, ये शायद आपको दिन लग सकते थे। अब कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन हम ये सुपर कंप्यूटिंग और इस साइड पे शायद हम आ ही ना सकते। तो लीनियर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब आप फेस डिटेक्शन करते हैं तो वो आपके वेक्टर्स बनाते हैं चेहरे के और उसके ग्रेडियंट्स के, तो उसके अंदर भी लीनियर अलजेब्रा का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा आजकल डीप फेक्स चल रहे हैं, डीप फेक्स में लीनियर,
मतलब मशीन लर्निंग की जो चीज़ है उसके अंदर लीनियर अलजेब्रा बहुत ज़्यादा है। और फिर अगर आप रिसर्च वाली साइड पे जाना चाहते हैं, जैसे हमने पीछे बात की कि आप रिसर्च कुछ बंदे जाना चाहते होते हैं, तो उसमें आपकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। सही हो गया, सही हो गया। चलिए उमेर भाई, नाउ वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स आवर सेकंड फेज एंड अब यहाँ पे आपसे मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करूंगा जो हमारे करंट जो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियर के स्टूडेंट्स ने, ठीक हो गया। So first of all, Mohammad Jan Zeeb का एक question आया है and he's saying that so majority of people don't know much about this field and if I am being honest, I didn't either until I came to this. Due to this, most people don't view this as an equal to other fields of engineering like mechanical, civil, electrical, material and so on. So how do you choose to do this engineering specifically? What were the circumstances and if there were any which made you choose this field? Can you please elaborate on that? अच्छा, तो इसके ऊपर मैं भी ऑनेस्ट हो जाऊंगा कि डेफिनेटली मैं जब आया था मुझे सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पता था और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पता था, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसका भाई मैकेनिकल इंजीनियर था और एक इलेक्ट्रिकल, तो मुझे खुद भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स का नहीं पता था। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे मेरी किस्मत यहाँ पे ले आई और अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए बेहतरी थी, तो मैं इस साइड पे आ गया। नाम मतलब ज़ाहिर नाम नहीं सुना था क्योंकि रिलेटिवली थोड़ा सा मुख्तलिफ काम है हमारा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमारी जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स की ब्रांच है किसी दूसरी ब्रांच से कम है। उसकी एक वजह ये है कि अभी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हम नहीं सुनेंगे जो मैकेनिकल नहीं करवा रही, इलेक्ट्रिकल नहीं करवा रही, सिविल नहीं करवा रही, और हर साल तकरीबन 40-50 हज़ार बच्चा सिविल मैकेनिकल बनता है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो सैचुरेशन हुई हुई है। दूसरी बात यह है कि अभी जो हमारे मेरा एक अभी रिसेंटली मुझे एक बात हुई है कि मेरा एक दोस्त था, वो एक और इन्हीं टॉप की ब्रांचेस में से था, वो एक कंपनी में गया, तो उस कंपनी ने उसको कहा कि आप आर्क मैप सीखो, यानी कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स की चीज़ सीखो, उसकी सीट है हमारे पास, हम आपको उसके ऊपर हायर कर सकते हैं। तो उसने मुझसे रब्ता किया कि यार ये मैंने तो GIS सीखनी है, तो इसलिए सिर्फ इस वजह से कि हमने नाम नहीं सुना हुआ या रिलेटिवली न्यू है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये कोई किसी फील्ड से कम है। और दूसरी बात यह है कि अगर मुझे अब दोबारा मौका मिले, मेरी मेरिट पोजीशन फर्स्ट भी हो ना, मैं IGIS के अलावा और किसी डिपार्टमेंट में नहीं जाना पसंद करूँगा, जियो इन्फॉर्मेटिक्स ही करना पसंद करूँगा। ठीक हो गया, वेरी वेल सेड उमेर भाई। और उमेर भाई इसके साथ आप ये भी बता दें कि आर देयर एनी स्ट्रगल्स विद जो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियर्स फेस व्हेन दे अप्लाई फॉर द जॉब मार्केट? इस तरह का भी हुआ है कि किसी कंपनी को मतलब उन्होंने सीट को नाम चेंज किया हो, मतलब मोस्टली इसको पाकिस्तान में GIS RSB कहा जाता है और एज वी नो कि नस्ट के अंदर इसको BE जियो इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है क्योंकि इट्स ओनली वन ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। बिल्कुल। तो इस बारे में आप प्लीज बताएं। ऐसा कोई स्ट्रगल का केस मेरे नज़र से नहीं गुजरा या मुझे नहीं पता चला, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए स्ट्रगल की ज़रूरत है भी। लेकिन एक बात है कि लोग जो कंपनियां हैं उनको इतना नहीं पता इस चीज़ के बारे में। अभी प्रोजेक्ट्स हम कर रहे होते हैं, उसके अंदर GIS के सोल्यूशन डाल रहे होते हैं, सारी राउटिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग और ये सारी चीज़, तो एवरी सेकेंड ऐप दैट वी वर्क ऑन हैज़ दिस काइंड ऑफ थिंग, बट ये है कि उनको पता नहीं होता कि इसमें GIS है। हाँ, अलबत्ता हमें एक एज मिल जाती है ये वाली कि क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग और उन दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन का पता होता है, कि लोकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा अंदर डाटा साइंस के अंदर या GIS के अंदर, वो वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे पास होता है। तो बाकी जो ब्रांचेस के लेट्स से CS के लोग हैं उन्हें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है जब इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, तो हमें तो उल्टा इसकी एज मिलती है, मतलब हमारे लिए कोई इतनी परेशानी नहीं होती इस चीज़ के लिए। सही हो गया। अच्छा उमेर भाई, एक और आखिरी स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट ने किया है, इफ्तिखार शेख हैं, वो पूछते हैं कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग जैसा कि हम सबको पता है इट्स क्वाइट अ डाइवर्स फील्ड, तो इस डाइवर्सिटी के साथ मतलब हम मास्टर्स लेवल पे या अगर हम फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं तो हम किस फील्ड को परसू कर सकते हैं? लाइक इसमें हम सिविल के कोर्सेज पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल के पढ़ते हैं और कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड पढ़ते हैं, तो कैन यू प्लीज टेल मोर अबाउट कि अगर कोई बच्चा सिविल की तरफ जा रहा है एनवायरमेंटल, तो वो क्या क्या फिर अप्रोच यूज करें इलेक्टिव से रिलेटेड या एनीथिंग लाइक दैट? इलेक्टिव्स जब हमें पढ़ाए जाते हैं ना, तो उसमें वो बाकायदा वो बताया हुआ होता है, क्योंकि अभी कोर्सेज का नाम जो कोर्सेज सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे उनके नाम कोर्स कोड में भी ना CE लिखा हुआ होता है। इसलिए वो अब आपने अगर एक फ़ैसला कर लिया, लेट से आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं या वैसे
सिविल की तरफ जाना चाहते हैं, आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, या आप इस तरह की जो फील्ड्स हाइड्रोलॉजिकल साइंसेज की तरफ आप जाना चाहते हैं, मतलब क्योंकि हमारे जीआईएस के अंदर फील्ड्स बहुत सारी कंबाइंड हैं, तो हमारे लिए जो आगे जाके ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब हमें सिर्फ ये है कि जब हम उसके जो कोर्सेज़ के जो इंट्रोडक्शंस हमें दिए जाते हैं ना, तो उसमें हमें ये बताया जाता है कि अच्छा ये वाली फील्ड आपको किस साइड पे ले जाएगी। लेट्स से अगर हम अब इरिगेशन इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो वाली चीज़ हमें हाइड्रोलॉजिकल साइंसेज या हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स या इससे रिलेटेड चीज़ों में लेके जाएगी। अगर हम मशीन लर्निंग का इलेक्टिव लेते हैं, तो डेफिनेटली हम कंप्यूटर साइंस वाली तरफ जाने के हमारे इम्कानात रोशन हो जाएंगे। अगर हम टाउन प्लानिंग या लैंड यूज़ के कोर्स ले रहे हैं, तो वो हमें सिविल वाली साइड पे लेके जा सकता है, या अर्बन प्लानिंग के इटसेल्फ भी अलग से एमएस होते हैं। तो ये आप जब आप कोर्स के जो इंट्रोडक्शन होते हैं ना, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये फील्ड हमें कहाँ लेके जा रही है। मतलब कोर्सेज के नाम वेरी डिस्क्रिप्टिव होते हैं, आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम ये कोर्स हमें किस फील्ड में ले जाएगा। सही हो गया उमर भाई, वेरी वेल सेड. नाउ we'll try to go towards the concluding phase. And my last question is that do you have any other advice for undergraduates and anything you wish you did your degree and you will recommend to current undergraduates students? यार मैं अगर आपको दिल की बात बताऊँ ना, तो एक चीज़ होती है पर्सनल ब्रांडिंग। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्लान करके पर्सनल ब्रांडिंग की थी, लेकिन मेरे कोई दोस्त बहुत अच्छे थे, तो मुझे मतलब अगर मैं छोटा सा भी कोई काम करता था ना, तो मेरे जो दोस्त थे, जो मेरे क्लास फेलो थे, दे मेड श्योर कि एवरीवन नोज अबाउट इट। तो ये वाली जो चीज़ है ना, कि लोगों से अच्छा, लोग आपके मतलब लोग आपकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, आप खुद कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ लोग हैं जो आपकी चीज़ें बता रहे हैं बाहर। तो उसका एक ये फ़ायदा हो जाता है कि यार आपकी जो स्किल्स होती हैं ना, आपको बाहर जाके उतनी मुश्किल नहीं होती बताने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो अबाउट दैट। तो उसका मुझे अब ये फ़ायदा हुआ कि अभी मैंने एक भी कंपनी को मैंने खुद अप्लाई नहीं किया। सब कंपनीज़ को मेरा नाम उन्हें किसी तरह से पता चला, किसी तरह से उनको इस चीज़ की पता चला कि इसको ये चीज़ें आती हैं, तो हमारे लिए ये सूटेबल कैंडिडेट हो सकता है। तो ये वाली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि यार दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, दोस्तों को लिफ्ट करने की कोशिश करो। अगर मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे मतलब इतनी आसानी से जॉब मिल गई, कंपनियाँ अभी भी क्यू में हैं, तो उसके पीछे ये वजह है कि मेरे पास अच्छे दोस्त थे, मुझे किसी ने लिफ्ट किया है। तो ये है कि तुम सब अगर आपने जहन में बात बना लो ना कि यार हमने लिफ्ट करना है, दूसरे बंदे को हमने ऊपर ले जाना है। अगर आपका दोस्त तरक्की करेगा, तो आप ज़ाहिर है आपके लिए भी फ़ख्र की बात है। और दूसरी बात ये है कि जब अल्लाह ताला की मखलूक की आप मदद करते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए आप आसानियाँ पैदा करते हैं, तो इस बात में तो ज़रा शक नहीं है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो ये है कि यार दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके लिए आसानियाँ पैदा करो। अगर तुम्हें कोई नई स्किल पता चली है, अगर तुम्हें कोई चीज़ पता चली है, तो तुम उनको बताओ। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तुम उनके साथ शेयर करो, क्योंकि रिज़्क अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई बंदा तुम्हारे रिज़्क में कंपटीशन नहीं है। जो तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है, जो अचीवमेंट तुम्हारे नसीब में लिखी हुई है, वो मौत की तरह तुम्हारा पीछा करती है। सो ये मेरी एडवाइस होगी अपने तमाम जूनियर्स को। सही हो गया उमर भाई, वेरी वेल सेड. And I'm sure that your words would be appreciated by and would be beneficial to a lot of students. And I will like to thank you very much for your time. Thank you. And I wish and I pray very best of luck for you, and I wish you a very good luck for your future and your career. Thank you so much for being here with us. Thank you very much. मैं भी आखिर में चादर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसके ज़रिए ज़ाहिर है एक अलुमनाई के साथ कनेक्ट हो जाएंगे बच्चे, उन्हें थोड़ा सा वे फॉरवर्ड का पता चल जाएगा। तो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।